Hello students, welcome to an Academy platform. This platform provides daily live classes, structured courses, live test quizzes, and unlimited access on subscription. You can also download an Academy Learning app, which is available on Google Play as well as App Store. And daily live classes, structured courses, all that is available in this platform also. Okay, this is about me, and this is my Unacademy profile link. I'm also having special classes. So today's special class will be about union budget. Okay, you can go and watch and enroll yourself there. And this is an Academy profile link, and this is my Telegram link. So if you have any doubt, any question in my lecture, you can ping me here, and all those doubts will be answered. Along with me, these are top educators on an Academy, so you can watch their courses also. These are different subscription plans available on the platform. So if you choose Plus, you have live classes, test series, unlimited practice, and a structured schedule. If you go with Iconic, you also have personal coach, daily mains question answer practice, study plan, and personalized feedback. These are different plans for different durations, which you can select according to your requirement. So all these plans are available at 10% discount if you apply this code, that is Amit PS. Okay. Again, there are different plans of different durations. So for example, there is 12-month plan, then 24-month plan, 26-month plan. Again, these are available at 10% discount if you apply this code, that is Amit PS. These are different options which are available on the platform. I'm taking PSIR optional. Okay. Again, there are different plans of different durations. Okay, so the issue that I'm going to talk about today is about India's foreign policy. Okay, और this is an analysis जो मैंने आप provide कर रहा हूँ आपको. This is the analysis by सुमित गांगुली. और ये किसकी analysis है? This is the analysis of the book The India Way by your External Affairs Minister Jaishankar. Okay. तो ये 2-3 महीने पहले ये बुक रिलीज हुई थी, एंड दिस बुक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिल्ली डायलॉग्स जो हुए थे, तो उसमें जो रिजल्ट्स निकल के आए थे, ओके, जो डिस्कशंस के जो व्यूज जहां वो जो एक्सप्रेस हुए थे जयशंकर के द्वारा, all that has been compiled in a book, that is India Way. Okay, and now this is actually the review of that particular book. Why I have taken this particular topic today is because Sumit Ganguly is not only going to talk about India Way book, but this analysis that he has provided is going to be very useful for your PSIR optional. Okay, मतलब यहाँ पास India's foreign policy आप जानते हैं कि this is the part of paper 2 section 2. Okay. So you will learn various things here which are going to be very useful from your mains point of view. Okay. Now starting our discussion here. Since India's independence in 1947, several of its diplomats have produced diplomatic memoirs, sometimes of great quality. तो उनमें से एक कौन है यहाँ पास आज जयशंकर है. तो सुमित गांगुली actually he is telling about that various diplomats have produced their own memoirs. So for example, KPS Menon is there, one of India's ambassador to Moscow, then KM Panikkar और शिशिर गुप्ता, ये सब ने अपने मेमोइर्स दिए हैं, और उसी लाइन में द इंडिया वे को भी देखा जाना चाहिए. ओके. But few Indian foreign policy officials have written a book
on New Delhi's relations with world while still in office. तो मतलब ये है कि जयशंकर अभी भी ऑफिस में है and he has written this particular book. Subsequently, Subramaniam Jaishankar's new book, The India Way, marks an important departure from the past. Jaishankar, currently India's Minister of External Affairs, has enjoyed a distinguished diplomatic career. A former ambassador to the United States and to China, he was appointed Foreign Secretary in 2015, the highest civil service post in Indian Foreign Service. तो आप जानते हैं कि जयशंकर has been a career diplomat. Okay, so he has been a career diplomat. उनके बहुत important assignments रहे हैं एक एम्बेसडर के तौर पर और इसीलिए in a current dispensation he is actually an asset that we have in form of external affairs minister. After a brief after a brief stint in the corporate world following his retirement in the year 2018, Prime Minister Narendra Modi inducted him into his cabinet in May 2019. जब ये गवर्नमेंट बनी थी 2019 में तो इनको External Affairs Ministry offer की गई थी. Jaishankar attempts to sketch out how India. So in that sense, you can say he is going to be a good, or you can say a rare combination of a scholar as well as politician. Okay, तो politician in not conventional sense. वो आपने देखा होगा कि जब जयशंकर बैठते हैं पार्लियामेंट में तो he is not acting just like any other political figure that you see. Okay, तो इस सेंस में वहाँ पास थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन स्टिल दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ his scholastic ability and his political skills that is being employed by this present dispensation in a positive way. Jaishankar attempts to sketch out how India should forge a foreign policy in a world where China's rise and assertiveness are changing the contours of global politics. Okay. It also sketches out a pathway for India to deal with the significant and novel forces in international politics. तो यही बात है कि यहाँ पास जो बुक है ये मैंने क्यों इस चीज को के बारे में बात करनी चाहिए वो इसलिए कि यहाँ पास हाउ इंडिया इज गोइंग टू have its race, how is India going to conduct its foreign policy, that is something which is visible in this particular book. Matlab, this is not a simple book by just another career diplomat. This is a book by a person who is still in office. So his views are going to shape India's foreign policy. समझ रहे हैं आप? तो इस सेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो यहाँ पास आपको बहुत सारे ग्लिम्पसेस मिलेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होने क्या वाली है. ओके, स्पेशली रिसर्जेंट नेशनलिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब आपने देखा होगा जिस दिन RCEP कंक्लूड हुआ और उसके बाद फिर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए उसी के दौरान जयशंकर का स्टेटमेंट था कि the words like liberalization, globalization are being used as mantras, but these things have contributed in the deindustrialization process of India. Now, this very radical statement, I would say, has come from Jaishankar. Okay, तो उनके यहाँ पास विचार और ना सिर्फ विचार बल्कि by by having those points sketched out in this book, he in a way is going to indicate what India's foreign policy will be under his external affairs ministry. Okay, but while Jaishankar touches on these subjects, his book suffers from too many. तो ये मान लीजिए सुमित गांगुली का पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि after all this is actually a review. After all, writing a book about country's foreign policy while serving foreign ministry is laden with pitfalls. ओके, क्योंकि यहाँ पास क्या है कि अभी वो ऑलरेडी क्या है इस टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है तो हो सकता है सुमित गांगुली का कहना है कि वो सारी की सारी नेगेटिव पॉइंट्स को उस तरह से एक्सप्रेस ना कर पाए जो एक फ्री इंडिविजुअल कर सकता है. वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ कैंडोर. वही मतलब है. How does Jaishankar's book fare on this course? The writer deserves credit for bluntly stating that three events and choices have hobbled India's emergence on the global stage. Three events and choices has hobbled India's emergence on the global stage. The partition of British India at the time of independence in 1947. एक ये है, that is first, independence. Then second point is the delay in undertaking economic reforms until 1991. तो 1991 में आप जानते हैं कि LPG रिफॉर्म्स हुए थे बट
they started taking place in the decade of 80s itself. मतलब 1970s के एक्चुअली लास्ट ईयर्स में इस तरह के रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए थे. और आप जानते हैं कि 1970s में डेंग जियाओपिंग के अंडर की लीडरशिप में चाइना ने ये रिफॉर्म्स ले लिए. तो चाइना वाज एक्चुअली at least 1.5 decade ahead in bringing about those reforms, okay, which we brought about in the year 1991. ठीक है, तो ये दूसरा इवेंट है. और तीसरा है द डिसीजन टू क्रॉस द न्यूक्लियर रूबिकॉन अंटिल 1998. और तीसरा ये है कि 1998 तक हम न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट करने में लगा दिए. मतलब कि हम बहुत पहले कैपेबल हो गए थे, लेकिन फुल कैपेबिलिटी एक्सप्रेस करना डेटोनेशन ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइस, that happened only in the year 1998. Okay. The first, of course, cannot be wholly blamed on India's nationalist leadership. बिल्कुल कि 1948 की लीडरशिप जो थी वो that was not responsible for bringing about independence in the year 1947. British colonial policies in considerable measure contributed to a tragic outcome that cost the lives of at least 1 million people during the 1947 partition and resulted in the transfer of more than 10 million across borders in a matter of months. तो ये आप जानते हैं, दिस इज अ ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन. आप ध्यान रखिए कि जब हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी विजन की बात कर रहे हैं तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी स्टार्टेड टेकिंग शेप इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस. ओके, और उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, the example of India's foreign policy taking shape even before independence was that Indian leadership was very vocal when it came to events which had global repercussions. For example, 1917 का October Revolution, Russian Revolution. Okay, फिर League of Nations में इंडिया का पार्टिसिपेशन. उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड उसी के टाइम में समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का पार्टिसिपेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडियन लीडरशिप का नाजिज्म के खिलाफ असर्शन. ओके, तो बहुत सारे ओकेजन्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि those leaders who were fighting for India's independence were also in a way contributing to the formation of India's foreign policy vision, जो हम बाद में जाके 1947 में के बाद जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे तो साफ साफ वो चीजें दिखती हैं. ओके, गांधीयन विजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी दैट रिफ्लेक्टेड इन नेहरूज विजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. हमारा सोशलिज्म की तरफ टिल्ट होना, वो आप जानते हैं कि नेहरू और सुभाष जैसे लीडर की तरफ से पहले से ही था. फिर हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करना कोल्ड वॉर के टाइम में, दैट इज ऑल्सो द रूट्स ऑफ विच गोज टू प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जब हमारी लीडरशिप आइडियोलॉजीज के बेसिस में जो डिवीजन है उसको अपोज कर रही थी. फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एंटी रेसिस्ट होना, ओके, एंटी रीजनलिस्टिक होना, ये सारी चीजें कहाँ शेप हो चुकी थी, प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही शेप ले चुकी थी. ओके, देयर इज little question, however, that both the deferral of the economic reforms and India's nuclear ambivalence until 1998 constrained its rise. मतलब यहाँ पास ये कहा जा रहा है, सब सुमित गोंगले कह रहे हैं कि अब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, उसका तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था और इंडियन लीडरशिप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता था. लेकिन हमने दो चीजें जो डिले की, पहला 1991 का रिफॉर्म्स और दूसरा 1998 तक न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट ना करना, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रेनिंग इट्स राइज. मतलब इंडिया का इमर्ज होने में लेट जो हुआ वो इन दो इंपॉर्टेंट काम्स के डेफर करने से, मतलब फ्यूचर में इसको टालने से हुआ. ओके, आगे देखिए. बट while Jaishankar forthrightly addresses these issues, he also repeats some long-held shibboleths that continue to animate the beliefs of India's foreign policy establishment, namely that it has neglected the country's vital national security interest.
and paid inadequate attention to economic progress and pursued a risk-averse course in the world arena. मतलब क्या है कि जयशंकर यहाँ पास हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये क्या थी स्टार्टिंग में, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो थी उसको इग्नोर करती है. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसमें भी एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलता है. और तीसरा है रिस्क एवर्स पॉलिसी. देखिए यहाँ पास किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करते, मतलब whenever a nation goes to frame its foreign policy, there are certain objectives which are to be achieved. Okay, so these objectives of foreign policy is going to decide the actual shape that it takes. Okay, अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, उनमें से समझिए कि जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उठाऊं यहाँ पास, तो और इस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज के ऊपर बात करना कि बड़ी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी है. आप जानते हैं इस चीज को. द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी, नॉट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एनी फॉरेन पॉलिसी इज व्हाट? सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ एनी, टू प्रिजर्व सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ एनी नेशन स्टेट. लेकिन उन चीजों को अगर हम यहाँ किनारे करें तो इंडिया foremost foreign policy objective is to emerge as a global power के फॉर्म में इमर्ज करना. ओके, और यहां पास अगर ये एम है, एम ये है कि ग्लोबल पावर के फॉर्म में इमर्ज करना, तो उसके तरह से स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे. कैसे? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है कि ग्लोबल पावर्स जो भी बने हैं वो रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे बने. तो फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी? रियलिस्टिक होनी चाहिए थी. पॉलिटिकल साइंस में हम रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ IR पढ़ते हैं, जिसमें कई फंडामेंटल चीजें एक्सेप्ट की जाते हैं कि states are essentially in conflict with each other. That is one very fundamental truth of foreign policy according to realistic vision. आप ये भी देखेंगे कि any country which has managed to emerge as a global power has pursued realistic foreign policy. Okay, उसकी foreign policy idealistic नहीं होती, लेकिन there has been a lot of idealistic moorings in India's foreign policy. और रियलिस्टिक विजन में या रियलिस्ट थ्योरी ऑफ IR में नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को सुप्रीम रखा जाता है. तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज लैक्ड दैट रियलिस्टिक विजन, रियलिस्टिक रिगर. ओके, और उसी का खामियाजा है हमें भुगतना पड़ा कि हमने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सुप्रीम नहीं रखा. फिर आप दूसरी बात देखिए कि इन टुडेज वर्ल्ड it is not your sheer military strength or land mass which is going to decide your power. Land mass और military ये पावर डिसाइड नहीं करते हैं. तो क्या पावर डिसाइड करता है? एक्चुअल पावर डिसाइड करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब इकोनॉमिक पावर, ये कैसे? ओके, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. आप मतलब दो एग्जांपल बड़े साफ हैं. एक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी US है, और वही इंडिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है. और वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी चाइना है, और वही इस टॉप पोजीशन में बने रहे स्टेट को रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है. ओके, तो आप यहां देख रहे हैं कि US which adopted the policy of isolation in interwar period, concentrated in economic field, and when it got rich, or when it was able to attain the economic progress, it translated that economic progress into its military might. And same process has been repeated in case of China. So China first strengthened itself economically, and then subsequently it used that economic progress in strengthening itself militarily. So it translated the economic power into the military power. और यहाँ पास हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ध्यान ही नहीं दिया. ओके, मतलब उतना ज्यादा, अब यही तो बोला जा रहा है कि 1991 का रिफॉर्म्स डिले किया,
तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उतना ज्यादा ध्यान नहीं था। ओके, मतलब एनफ अटेंशन यहाँ पे नहीं किया गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। और यही इसका एक एग्जांपल है कि हमने 1991 के रिफॉर्म्स जो किए वो 1991 में किए, वो बहुत पहले कर लिए जाने चाहिए थे। ओके, मतलब इफ नॉट 17 एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ 80s वो रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए थे। ओके, अब ये चीज है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं रहेगी तो मिलिट्री स्ट्रेंथ डेवलप करना भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो आप आज भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 3-4 years बैक इंडिया यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस आइटम्स एंड दैट वाज समथिंग दैट आवर लीडरशिप वाज ब्रैगिंग अबाउट। ओके, बट what we should actually be proud of is this, that when we start developing the weapons on our own and start selling them. So one thing which any country should actually be bragging about is being the largest exporter of defense items and not the largest importer. So that is the problem here. Because we did not have economic progress, that is why we did not have military progress. Because it is the economic progress which any state historically has managed to translate into its military strength or military progress. तो ये ट्रांसलेशन है जो किसी कंट्री को, ट्रांसलेशन किसका, इकोनॉमिक माइट का मिलिट्री माइट में, जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाता है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो कंट्री ध्यान नहीं देगी, दैट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग मिलिटरली ऑल्सो। फिर है रिस्क एवर्स होना, पॉलिसी का रिस्क एवर्स होना। यहाँ पास इसका कारण, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी केसेस, फॉर एग्जाम्पल सीरियन क्राइसिस आई, उसके पहले अरब स्प्रिंग था, या कहीं भी दुनिया में कितनी जगह फॉल्ट लाइन्स हैं और वहां पास कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रिस्क अवर्स। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन ऑफ एकोमोडेटिंग नेचर। मतलब हम एस्पायर करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट, लेकिन हमारा किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में, अभी कुछ चीजें चेंज हुई हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट में जहां कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व हो, इंडिया वहां इंटर नहीं करता, इंडिया अब्सटेन करता है एंट्री से। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, जैसे मिडिल ईस्ट में कोई कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, तो आपने सुपर पावर्स को तुरंत इन्वॉल्व होते देखा होगा, और इंडिया वहां पास कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से भी बचता है। उसका हमेशा से एक जनरल स्टैंड रहता है कि वी आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन of the dialogue, and we also favor that the voices of democracy should emerge from within, मतलब from population। लेकिन इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट स्टैंड यहाँ पास नहीं लिए जाते। बहुत कम इंस्टांसेस है फॉरेन पॉलिसी में जिनमें इंडिया ने बहुत क्लियर वे में इंस्टांसेस को क्लियर किया है। सो फॉर एग्जांपल जैसे 2014 में अगर मैं आपको बताऊं कि क्रीमियन क्राइसिस के बारे में, तो क्रीमिया में क्या हुआ था कि देयर हैज बीन रशियन एनेक्सेशन। ओके, अब क्रीमिया अगर आप देखेंगे क्रीमियन पेनिनसुला को, तो वहां पास ब्लैक सी है। अब वेस्टर्न कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली यूएसए, सब वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए का इंटरेस्ट ब्लैक सी में था, और यूक्रेन को वो रसिया के काउंटर में क्रिएट करने के लिए बना रहे थे। तो क्रीमियन एनेक्सेशन से क्या हुआ कि रसिया came to acquire control over Black Sea also. So a country like Russia, if it starts controlling Crimean Peninsula, then an ocean like Black Ocean, or sea like Black Sea, is going to become the backyard of Russia, and to a good extent it has become the backyard of Russia. But that was something which was needed in Russia's case. Why? Because it was being encircled by Western European countries and अमेरिका, यूएसए। ओके, तो नाटो फोर्सेस के द्वारा वो इंसर्कल किया जा रहा था। इंसर्कल का मतलब कि उसके चारों तरफ एंटागोनिस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने का जो प्रोसेस पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही चल रहा है, वो प्रोसेस लगातार चल रहा था। मतलब इन अ वे रसिया वाज कंपेल्ड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। Okay, so when this happened, Russia was being opposed from every ally of USA.
और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी उसके अपोजिशन में थी, लेकिन इंडिया ने उसमें प्रॉपर स्टैंड लिया था। और इंडिया का जो फॉर्मल स्टेटमेंट जो हमारे स्टैब्लिशमेंट से गया था वो ये था, इट वाज समथिंग लाइक दिस दैट इंडिया टेक्स नोट ऑफ रशियाज कंसर्न इन द रीजन। मतलब कि इंडिया रशिया के उस रीजन में कंसर्न्स को समझता है, और वो क्या कंसर्न्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो दैट इज वन फॉरेन पॉलिसी इंस्टेंस वेयर India took a kind of a stand which was not only clear but also went against a committee of nations with which India is having very good relations, and India to a good extent relies on those very nations for its own development. उसमें से यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। मतलब चीजें यूएसए के खिलाफ थी वहां पास, और तब भी हमने उसमें रशिया का स्टैंड लिया। लेकिन ऐसे ओकेजन्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत कम है। ओके, तो रिस्क एवर्स रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। आगे देखिए, ओके, the Modi's administration has not evinced any enthusiasm for India's erstwhile attachment to the doctrine of non-alignment. आपने देखा होगा कि non-alignment movement, India has been a founding member of this very movement, और जब से मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी actually came to acquire the control here, under his leadership, India has not been very active in forwarding the agenda of NAM. ओके, तो मतलब नाम की सबमिट जो हुई उसमें भी हाईएस्ट लेवल में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, और नाम की तरफ से इवन नाम 2.0 which was envisaged in the year 2013, even that is not something which is not being talked about on this foreign policy. अच्छा, उसका कारण क्या है कि नाम to a good extent has been idealistic in its stance. ओके, वो एक पूरा अलग से डिस्कशन है। हालांकि नाम का एसेंस आप गिने तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग न्यूट्रल, इट इज अबाउट बीइंग independent of any power politics, okay, which is being governed by blocks, and to assess the international events, international happenings on their own merit without looking into them with any ideological lens. तो ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था। तो उस सेंस में ये बहुत रियलिस्टिक भी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज ओनली आइडियलिस्टिक, लेकिन नाम का जो एक एम्फेसिस है वो आइडियलिस्टिक कंसिडरेशंस में ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है उसमें, और मोदी उस पर्टिकुलर व्यू को छोड़ना चाहते थे। ओके, तो ये इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का ये स्ट्रेस था कि वी कुड रिफ्लेक्ट अ मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, an aggressive foreign policy, okay, a kind of proactive diplomacy, and all that need required India not to give much importance to them, and this is something which has exactly happened in under Prime Minister Modi. Okay, आगे देखिए, nevertheless Jaishankar suggests that the policy served India's interest well during much of the Cold War period. okay, तब भी जयशंकर कह रहे हैं कि अब देखिए यही चीजें आपको PSIR में आप आंसर लिखने में काम आती हैं कि अब now you can use this particular argument which has been given by Jaishankar in his book The Indian Way, तो ये आपके आंसर को बहुत रिच बनाती है। तो जयशंकर का खुद का कहना है कि हालांकि मतलब यहाँ पास आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में यहाँ स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, किस चीज को, नाम को, लेकिन जयशंकर मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी बुक द इंडिया वे में कि नाम के द्वारा गाइडेड फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया की काफी मदद की है, इंडिया के इंटरेस्ट को काफी कुछ बहुत हद तक फुलफिल किया है कोल्ड वॉर के टाइम पे। Okay, that is the time period after the Second World War till the year 1991, when the year when disintegration of USSR took place. Okay, let's move forward. आगे देखिए, apart from its tilt towards Soviet Union from the early 1970s to the Cold War end, non-alignment had long outlived whatever might have been its utility. अच्छा, अब यहाँ पास नाम
जैसा कि मैंने बताया कि दिस हैज बीन अ मूवमेंट of the countries of which India was a founding member. इसका stress था कि during the Cold War there was a kind of bipolarity that existed between two power blocks. One was led by USA, the other was led by USSR. Okay, now this particular block was actually a block of ideology of capitalism, and this was communism, or sometimes you can say socialism. So that is why it is called ideological war. Cold War was an ideological war. But this ideological war did not remain cold always. Okay, so it remained cold only on Western turf. और बहुत सारे skirmishes इन दो ब्लॉक्स के बीच में देखे गए, जिसके बहुत सारे एरिनाज रहे। साउथ ईस्ट एशिया भी इसने कोल्ड वॉर को हॉट होते देखा है। मतलब यहाँ रियल फाइट्स यहाँ हुई, रियल कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं यहाँ पर। अब ये नाम उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहा था कि नाम मेंबर्स क्या कर रहे थे कि दे वर नॉट इन फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, दो टू मिलिट्री ब्लॉक्स, okay, two ideological blocks. They said that every international event that takes place should be seen not with the lens of any particular ideology but by its own merit. So states following NAM are supposed to, I'm saying, are supposed to adopt a foreign policy stance which is neutral to any particular ideology. In that sense, NAM was neutral, theoretically speaking. But what happened that this particular group of countries, including India, was having a tilt towards USSR. This has been the assertion of various scholars. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल है, समझिए कि यहाँ पर जैसे 1960s में जब यूएसएसआर का हंगरी में एनेक्सेशन हुआ था, इंटरवेंशन हुआ था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अपोज्ड बाय इंडिया। ओके, बट जब यूएसए का वियतनाम में इंटरवेंशन हुआ, दैट वाज अपोज्ड बाय इंडिया। In that sense, a country like India was also selective in its criticism and opposition. कि अगर यूएसए का वियतनाम में जो इंटरवेंशन है उसको अपोज किया जा रहा था इंडिया की तरफ से, तो उसके पहले यूएसएसआर का हंगरी में इंटरवेंशन क्यों नहीं अपोज किया गया? फिर आप 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को जो देखते हैं, that was a clear expression of India's tilt towards USSR. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि that decision was incorrect. That was based on realism. Okay, हम और realism वही जो किया जाना चाहिए था उस वक्त वही किया गया. I am with that particular decision. But if you go by the literal principles, if you follow them literally, then that is something which goes against the spirit of NAM. और भी बहुत सारी, ये इंडिया की बात है, और भी बहुत सारी कंट्रीज का यूएसएसआर की तरफ टिल्ट देखा गया जो नैम के मेंबर्स थे। इसीलिए कहा जाता था, यूएसए की तरफ से कहा जाता था कि नैम इज नॉट एक्चुअली न्यूट्रल, इट इज द टीम बी ऑफ यूएसएसआर। मतलब ये टीम बी है, यूएसएसआर मेन अपोजिशन है और इसको भी अपोज ही किया जाना चाहिए क्योंकि ये यूएसएसआर के साथ ही है। दिस वॉज ओपिनियन ऑफ यूएसए। ओके, लेकिन यहाँ सुमित गांगुली कह रहे हैं कि सुमित गांगुली का ओपिनियन ये है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है दैट हैज आउटलिव्ड, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पहली यूटिलिटी क्या थी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि दो चीजें हैं, एक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और दूसरा है नॉन अलाइनमेंट। ओके, सुमित गांगुली तो कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट की रेलेवेंस नहीं है, और अभी जयशंकर ने पिछले स्लाइड में हमने देखा क्या कहा कि नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट को अच्छे से फुलफिल किया है कोल्ड वॉर के टाइम। मैं यहाँ पास एक्स्ट्रा एक चीज जो आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी इंस्टेंस।
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? ये एक तरह से एक कल्ट की तरह बन जाता है, एक एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां चीजें एक आइडियोलॉजी का को शेप लेने लगती है. ओके, सो it will require a cooperation among countries. Not only that, then the movement will make them stand on certain platform which might bring them in conflict with other groups or other countries. Okay, so for example, if I say that just 1.5 decade ago, if India is sitting in any platform of NAM and at the same time is trying to negotiate any particular trade a deal with, say, USA, then India would not be seen as a country which is in favor of USA's led global order. That is one thing. India will also not be taken by USA as a country who can be trusted for meeting its own national interest when they entangle with the national interest of other countries like Russia. आज आपने देखा कि under the present dispensation, India has been accorded with the status of major defense partner by USA. That is one. India has also been granted with STA1. Okay. India has also been successful in signing all the 4 foundational agreements that concluded with the signing of BECA, Basic Exchange Cooperation Agreement with USA. Okay. All those feats which have been realized and achieved by this present dispensation became possible only when India relinquished its strong voice in support of non-alignment movement. Okay, because in non-alignment movement you also had countries like Iran. So for example, in the year 2013, when non-alignment movement NAM summit took place in Tehran, against the protocols and also against the pre-established arrangement of the seats, India's Prime Minister Manmohan Singh's seat arrangement was changed in the last minute, where he was made to sit just beside Iranian president. That was something that change that took place within just before the summit was made by Tehran establishment. And the attempt here was to make India look as if it is standing with Iran in global issues. That was also a time when USA was not having very good relations with Iran, although USA did not have good relations with Iran right after Iranian revolution, but during that particular time the relations was very tensed. Okay, so a great deal of tension was involved in the bilateral relationship, a bilateral relation of India, USA and Iran. So that platform was being used by Tehran to show, to reflect as if India is standing beside or with Iran, okay, in foreign policy issues or at the global level. What I'm saying that non-alignment movement, regardless of its initial principles that were framed by the founding members, has also been used politically by different nation states in different point of times. That is why there is no problem in opposing this kind of movement or not paying much attention to this kind of movement at present era. But being non-aligned is something which gives you a freedom to choose your foreign policy according to your interest in a way that is going to provide you autonomy, or more correct would be strategic autonomy in adopting the foreign policy steps or foreign policy instances. Because non-alignment will also, strategic autonomy would also mean that any country, for example India, is not going to be dictated by the whims of any particular state.
is not going to witness international events by applying any particular ideology, but it will adopt a foreign policy stance towards any particular global event by its own merit. In that sense, non-alignment, which provides strategic autonomy to any particular state's foreign policy, will always be relevant. ओके, सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने आपको जयशंकर का ओपिनियन बताया और फिर सुमित गांगुली का ओपिनियन यहाँ पास एक्सप्रेस किया हुआ है, और फिर एक और एडिशनल पॉइंट बताया। आप प्लीज इन लेक्चर्स को इस नजरिए से देखें कि आपको PSIR आंसर्स में लिखने के लिए रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, और वो स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? उन एक्सपर्ट्स के द्वारा आ रहे हैं जिनका नाम अगर आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में तो आपके आंसर्स बहुत मार्क्स फेचिंग होंगे। Okay, so in the previous slide we have seen that Jaishankar is of the opinion that non-alignment movement has served India's interest during the Cold War period. But Sumit Ganguly says that it is unfortunate that someone with the authority or with an experience like Jaishankar is not ready to say that non-alignment movement is an anachronistic thought, or it is an anachronistic way of conducting foreign policy. Anachronistic का मतलब होता है कि something which does not fit in present scheme of things. Okay, so for example आप कह सकते हैं कि सती प्रथा used to be practiced in medieval time. This is going to be an anachronistic practice in modern times. So similarly, non-alignment was something which was relevant in Cold War period, and now it has become anachronistic. Okay, so this is what he means. आगे देखिए, सुमित गांगुली भी कहते हैं कि in this particular book, Jaishankar has been very candid, very open in certain policies, in certain instances, and most interestingly, this includes India's ambivalence towards use of force in international politics. मतलब कि जयशंकर बहुत क्लियर वे में कह रहे हैं कि इंडिया हैज बीन एम्बिवैलेंट, बहुत डायरेक्ट और क्लियर नहीं था इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में फोर्स को यूज करने को लेके। ओके, दिस हेजिटेंसी, जयशंकर करेक्टली आर्ग्यूज, हैज लेफ्ट द कंट्री वल्नरेबल टू द एक्सटर्नल थ्रेट्स। और ये हेजिटेंट होना, फोर्स को यूज करने के लिए हेजिटेंट होना, दिस हेजिटेंसी, इस तरह की हेजिटेशन इन कंट्री को वल्नरेबल बना देती है एक्सटर्नल थ्रेट से। Okay, one of the principal examples he cites was India's failure to adequately appreciate security threat that it confronted from China prior to disastrous 1962 Sino-Indian border war. Okay, and the example that Jaishankar is citing here is 1962 war, और उसके पहले की जो प्रिपरेशन थी या उसके पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी, उसके पहले का जो इंडिया की तरफ से प्रोएक्टिविज्म होना चाहिए था फोर्स को यूज करने को लेके, वो ऑप्शन था। उस केस में इंडिया एम्बिवैलेंट था, ओके, क्लियर नहीं था, और उसका खामियाजा हमें 1962 के सिनो इंडियन वॉर में भुगतना पड़ा। आप ये सारी चीजें अपने PSIR आंसर्स में जयशंकर को और सुमित गांगुली को कोट करते हुए लिख सकते हैं। That said, his prescriptions for India to ensure that it can cope with China's present assertiveness are surprisingly anodyne. मतलब ये है कि सुमित गांगुली ये कह रहे हैं कि जयशंकर ये मानते हैं कि इंडिया का फोर्स को यूज करने को लेके जो हेजिटेशन था उसने नेशनल एक्सटर्नल थ्रेट से इंडिया को वल्नरेबल बना दिया, लेकिन उसके बाद भी आज जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जयशंकर, आज इस स्टेज में जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जयशंकर, दैट इज सरप्राइजिंगली एनोडाइन, मींस दैट इज सरप्राइजिंगली समथिंग which is not going to make China, which is not offensive to China, which will not look offensive to China. मतलब यहां अभी भी जयशंकर कोई एक ऐसा स्टेप या कोई एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं जिससे चाइना के अगेंस्ट वो ऑफेंसिव हो। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट सुमित गांगुली इज सेइंग। if I explain this very particular issue once again, then it can be said that Sumit Ganguly is saying that in his book
the India way, Jaishankar has been very candid, very open in admitting that India's ambivalence in using force in its foreign policy has made it vulnerable to external threats. Okay, and the example that Jaishankar provides in his book is of 1962 Sino-Indian border war. But even then, Sumit Ganguly says that when he suggests measures for today, when he suggests foreign policy measures, that is something which is not going to cause offense to China. मतलब ये है कि ये जानने के बाद भी कि इंडिया का फोर्स को यूज करने के लिए जो हेजिटेशन था उसने इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट के लिए वल्नरेबल बना दिया. जयशंकर सरप्राइजिंगली आज जो फॉरेन पॉलिसी स्टेप्स सजेस्ट कर रहे हैं वो भी चाइना के लिए ऑफेंसिव नहीं है. ओके, आगे देखते हैं. To wit, he suggests that India needs to boost its domestic capabilities, especially in the arena of human development, where it significantly lags behind China. इसके बजाय फोर्स को यूज करने के बजाय सुमित गांगुली कह रहे हैं कि जयशंकर जो सजेस्ट करते हैं अपनी बुक में वो ये है कि इंडिया को अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहिए, स्पेशली इन द एरिना ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां चाइना उससे कहीं आगे है या इंडिया चाइना से कहीं पीछे है. ओके, दैट ऑफ कोर्स कुड टेक डिकेड्स एट द अर्लीस्ट. और अगर ये इशू में ध्यान दिया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट चाइना के बराबर हो, ओके, ताकि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इंक्रीज की जाए, तो इसमें क्या ये डिकेड्स लगेंगे, इसमें दशकों का टाइम लगेगा. Jaishankar discusses the transformation of the global order through emergence of number of social forces. जयशंकर क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज यहां पास दिखाई देगी. द फर्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ रिसर्जेंट नेशनलिज्म. ओके, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली यूएसए में अंडर ट्रंप आपने नेशनलिज्म को बढ़ते देखा. फिर वेस्टर्न यूरोप में भी आपने देखा, जैसे जर्मनी, पोलैंड, पोर्चुगल, ओके, इवन टू गुड एक्सटेंट फ्रांस ऑल्सो. सारी कंट्रीज में क्या हुआ, ये नेशनलिज्म राइज में. He sees this as the return of an enduring phenomena and argues that the efforts to transcend it are unlikely. और जयशंकर के हिसाब से क्या है कि ये क्या है, ये एक enduring phenomena है. और अगर नेशनलिज्म राइज कर रहा है तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये फिनोमेना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती रही है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में हिस्ट्री में, उसी की तरफ रिटर्न है. और इसको ट्रांसेंड करना या ऐसे एफर्ट्स करना जो जिससे कि ये ट्रांसेंड किया जा सके, वो सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है. उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनलिज्म इज गोइंग टू रिमेन, ओके, फॉर लॉन्गर टाइम टू कम. Okay, efforts to counter nationalism are not going to bring any results. That is what he means. आगे देखिए, more to the point, Jaishankar believes that nationalism is challenging the status quo in the global order. और जयशंकर यहाँ पास ये सार, प्लीज मैं यहाँ पास बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को आप किसी नोटबुक में जो भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोटबुक में नोट करिए. Or you can cite here Jaishankar's the India Way book, and also you can cite Sumit Ganguly's name. And this is a very good fodder for your mains answers. More to the point, Jaishankar believes that nationalism is challenging the status quo in global order, as seen through India and China's demand for better representation in multilateral institutions such as IMF, and in their increased negotiating muscle at global forums like that for the Paris Climate Change Accord. Okay. यहाँ पास क्या है, जयशंकर कहना है कि नेशनलिज्म ना सिर्फ अभी बना रहेगा, बल्कि नेशनलिज्म वो फोर्स है जो स्टेटस क्यो को चैलेंज कर रहा है. और स्टेटस क्यो, कौन सा स्टेटस क्यो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को आप देखेंगे तो दैट इज गवर्न बाय ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, और उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें आती, ठीक है. और IMF वर्ल्ड बैंक में आप देखेंगे तो दिस हैज बीन डोमिनेटेड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, और मेनली यहां पास डोमिनेशन देखिए किसका है, वो यूएसए का है. ओके, तो यहां पास इधर की स्टेटस को चेंज कर, मतलब लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज के द्वारा कि यहां पास रिफॉर्म्स होने चाहिए.
आपने बहुत टाइम बाद चाइना के कोटा में रिवीजन देखा था और इंडिया के कोटा के में रिवीजन देखा था. ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट a time when there a revision took place in the allotment of quota to China and India. But for a very long period of time, China has been a very emerging economy, and to a good extent, it has been challenging USA. But even then, the allotment of quota in its favor was not being revised. Okay, और अभी भी अगर आप कोटा देखें तो वो चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में नहीं है. ओके, तो ये चीज है. तो वहां पास डोमिनेशन है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस में. किसका? यूएसए का और वेस्टर्न यूरोप का. ओके, तो और अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉट ओनली इन आईएमएफ but in their increased negotiation muscle at global forums like that for the Paris Climate Change Accord. अब Paris Climate Change Accord में भी आप देखेंगे not only Paris Climate Change Accord, it is a climate change में जो भी negotiations हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले यूएनएफसीसी था, फिर बाद में जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट डील में सीबीडीआर प्रिंसिपल को एक तरह से इसको गिव अप किया गया और वहां पास कॉन्सेप्ट आया आईएनडीसीज का. ओके, तो ये हालांकि दिस वाज नॉट समथिंग दैट इंडिया एंड चाइना, कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना वर कंप्लीटली इन फेवर ऑफ. इंडिया एंड चाइना वर कंप्लीटली इन फेवर ऑफ सीबीडीआर, लेकिन तब भी आईएनडीसीज भी नहीं आता अगर इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज का यहाँ पास प्रेशर नहीं होता. मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेके आप देखेंगे तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज हैं उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो कंट्रीज हैं उनको ही आज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कदम लेने चाहिए या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए अगर यहाँ पास क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम किया जाना है. लेकिन लगातार प्रेशर बनाया जाता है इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज द्वारा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल वे में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को उठाई जानी चाहिए. हालांकि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम के पहले जो टेम्परेचर था उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ा उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या मेजर कंट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का है जो पहले अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर चुकी थी. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो स्टेज है जहां पास इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज का हो रहा है. तो ये कंट्रीज चाहती हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो स्टेप्स लिए जाए उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर. लेकिन यहां पास इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज क्या करती हैं? प्रेशर बनाती हैं और वो प्रेशर बनाने में सक्सेसफुल भी नहीं है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और उससे ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गई कंट्रीज हैं, ज्यादा हैं, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज ज्यादा होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी आज ज्यादा होनी चाहिए. तो ये एक नेट रिजल्ट है जो निकल के आता है इंडिया चाइना कंट्रीज की डिमांड्स का. ओके, आगे देखिए. और जब इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज इस तरह के प्रेशर बनाते हैं तो ये दिस ही आर्ग्यूज, जयशंकर आर्ग्यूज, has led to backlash in economically privileged countries which has contributed to the rise of protectionism and xenophobia. और जब इस तरह का प्रेशर बनाया जाता है इंडिया और चाइना कंट्रीज के द्वारा तो इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड कंट्रीज मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्डिक कंट्रीज में भी ऑल्सो, सम ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ये प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है, xenophobia को बढ़ावा देता है. प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है तो उससे क्या होता है? They try to raise protectionist walls by imposing higher tariffs in imported products and also are against migration. Okay, so people migrating to Western European region are not welcomed in many of the countries. Same kind of rhetoric was also there under Trump administration in USA. तो ये चीजें responsible है उसके लिए. Okay, आगे देखते हैं. Finally, he contends that there is an emerging contest between globalist and nationalist forces, a competition that will make the world more turbulent.
और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसआईआर में आप ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में रखते हैं कि देर आर स्कॉलर्स और कॉल्ड ग्लोबलिस्ट। ओके, मार्शल मैकलूहन, ये सारे लोग यहाँ ग्लोबलिस्ट हैं। फिर देर आर नेशनलिस्ट। तो ग्लोबलिस्ट क्या है? दे ट्राई टू इरेज इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ओके, सो फॉर देम नेशनल बाउंड्रीज आर नॉट सोवरेन। ओके, फॉर नेशनलिस्ट नेशनल बाउंड्री रिमेन्स अ सोवरेन एंटिटी। मतलब ये नेशंस स्टेट के एग्जिस्टेंस में, उसकी बाउंड्री के सैक्रोसैंक्ट होने में स्ट्रेस डालते हैं, और ये लोग उस बाउंड्री के इरोजन में स्ट्रेस डालते हैं और मानते हैं कि वो उस तरह की बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज अब मीनिंगलेस हो रही है। ओके, देखिए आगे। टू दैट एंड ही हाईलाइट्स द ग्रोथ ऑफ रिएक्शनरी xenophobic nationalism in various parts of Europe as it confronts refugees from war-torn societies in Middle East. I'm sorry. और इसी कॉन्टेक्स्ट में ही हाइलाइट्स द ग्रोथ ऑफ रिएक्शनरी xenophobic nationalism various parts of Europe. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में xenophobic और रिएक्शनरी नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है। किसके अगेंस्ट? उन रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो बहुत सारे वॉर टॉर्न जो प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल सीरियन क्राइसिस जो चल रही थी, फिर उसके पहले आपने देखा है कि इराक के केस में भी आईएसआईएस की वजह से जो क्राइसिस थी, ओके, कर्ड्स का जो इशू था, इन सारे केसेस की वजह से जो माइग्रेशन हो रहे हैं और रिफ्यूजीज जो हो रहे हैं, तो रिफ्यूजीज वेलकम नहीं किए जा रहे हैं ओनली बिकॉज नेशनलिज्म इज इन राइज। तो इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ग्लोबलिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में, दैट इज मेकिंग द वर्ल्ड मोर टर्बुलेंट, मोर डिस्टर्ब्ड। ओके, आगे देखिए। Oddly enough, he does not mention the rise of various anti-immigrant sentiments in United States, which President Donald Trump has done much to fan. और यहाँ पास सुमित गोंगले का कहना है कि जयशंकर अपनी बुक में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उनको रेज नहीं करते। मतलब इन अ वे ही इज बिकमिंग अ डिप्लोमेट अगेन in ignoring a very conspicuous case of anti-immigration sentiment which prevailed in United States under Trump administration was fueled by the top level leadership. Okay, so that is something that Trump has avoided definitely, as someone uh, from the country who is the major defense partner of United States. Okay, closer to India's own neighborhood and on matters dealing with New Delhi's immediate security concerns, Jaishankar displays a curious amalgam of naivety and sophistication. ठीक है, अब देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका केस क्या है, एग्जाम्पल क्या है। This ingenuineness is evident in his discussion of the significance of Modi's personal diplomacy in attempting to generate a thaw in Sino-Indian relations. Okay, sorry. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया के नेबरहुड में, उनकी पॉलिसीज में और उधर जनरेट हुए इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स में, वहां पास एक अलग तरह की एनालिसिस जो जयशंकर के द्वारा मिलती है, उसका एक एग्जाम्पल है जहां पास जयशंकर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं इंडिया और चाइना कि बायलैटरल रिलेशनशिप में जो आइस को मेल्ट कर सके। मतलब जनरेट अ thaw in Sino-Indian relations means to melt the ice that exists in this particular bilateral relationship. मतलब कि रिश्ते सुधारने की बात हो सके। ओके, admittedly written before the current border standoff with China, it nevertheless reveals a remarkable and ill-placed faith in dealing with a state that has clear revisionist ambitions. अच्छा, यहाँ पास बुक कब लिखी गई? जब ये जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ था उसके पहले की बात है। और यहाँ पर सुमित गांगुली मान रहे हैं कि हालांकि बुक इस पर्टिकुलर लद्दाख स्टैंड ऑफ के पहले लिखी गई थी, लेकिन तब भी वो जो सजेस्ट की जा रही है बुक कि यहाँ पास इंडिया और चाइना के बीच में आइस मेल्ट होना चाहिए, है ना, ब्रेकिंग द आइस होनी चाहिए। मतलब कि
कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट डेवलप होना चाहिए इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी में और इस पर्टिकुलर बायलैटरल रिलेशनशिप में। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ भी इसे इट इज नॉट समथिंग विच इज गुड और इट इज इल प्लेस्ड, मतलब दिस काइंड ऑफ एम्फेसिस ऑफ जयशंकर to melt the ice or to break the ice between India and China or in India-China bilateral relationship is ill-placed because China is a state which has clear revisionist ambitions. Okay, which has a clear revisionist ambitions means आपने देखा होगा कि चाइनीज लीडरशिप हमेशा अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में 2 centuries of humiliation की बात करती है। ओके, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ द clarion call by the top leadership in China, whereby they try to implore people there in order to do something which could make China great again. Okay, तो मतलब वहां की लीडरशिप का एम्फेसिस ये होता है कि चाइना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया है 2 centuries तक, और हमें हर हालत में अपनी खोई हुई पोजीशन को गेन करना है। ओके, उसके लिए हमें डोमेस्टिक सेक्टर में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। मतलब ये एक तरीका है वहां पास एक कम्युनिस्ट रजीम का अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को मेंटेन करने के लिए, और एक इसी पॉलिसी का नतीजा है कि चाइना is having a very aggressive foreign policy, a very militaristic foreign policy, and that is something which is very much visible in its conduct with other neighbors. Okay, ये सिर्फ इंडिया के साथ की बात नहीं। Contrary to the general opinion that we have with respect to China, that it has resolved issues with every single neighbor except India, the reality is that China still continues to have border disputes and other kind of disputes with many countries, okay, in its neighborhood. आगे देखिए। On the other hand, is discussion of relations with United States despite New Delhi's checkered past history with Washington is free of cant and recriminations. अच्छा, इसका मतलब समझिए कि दूसरे हाथ में या दूसरे साइड में his discussions with relations with United States despite New Delhi's checkered past history with Washington is free of cant and recriminations। मतलब यहाँ पास क्या है कि अगर आप इंडिया यूएस रिलेशन का पास्ट देखें तो स्कॉलर्स का कहना है कि देयर हैज ऑलवेज बीन समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म in Indian foreign policy. That means what? That right from the starting, India's leadership did not advance or did not propose very good or close relation with America. ओके, तो यूएसए के साथ हमेशा जो है एक रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकन टेंडेंसी, मतलब रिफ्लेक्सिव वे में, ऑटोमेटिक वे में यहाँ पास एंटी अमेरिकन टेंडेंसी एग्जिस्ट करती रही इंडिया के साथ। ओके, और इसीलिए मतलब इंडिया, अगर हम देखें कि इंडिया यूएसए क्लोज कब आए तो आप पाएंगे कि दिस हैपेंड आफ्टर 1991। दिस इज द ईयर where disintegration of USSR took place, first point. It was also the year where we lost a very important ally, the most important ally of India, that is USSR, because of disintegration. And the inheritor state in that case, that is Russia, was not willing, or it was not willing to have that kind of close cooperation which USSR had after the signing of the Treaty of 1971. ओके, तो इस केस में आपने देखा कि रशिया जो इनहेरिटर स्टेट था वो उस तरह के क्लोज कोऑपरेशन को नहीं चाह रहा था 1991 के बाद, जो 1971 में इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी में विजिबल थी। एक चीज ये हो गई। अब आप देखिए कि उसी 1971 में एक प्रॉपर क्या क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा था। वो क्लॉज क्या था कि अटैक ऑन एनी वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन बोथ। So if any country attacks India, then it will be considered as an attack on USSR also. That was the reason why we were successful in our attempt in liberating
Bangladesh from Pakistan. So that was something which was opposed by USA, and USA also tried to send its forces, naval forces, to the Indian water in order to deter India in taking the step of liberation of Bangladesh. But that particular step of USA was countered by USSR then. Okay, तो इस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम यूएसएसआर के साथ रखते थे 1971 ट्रीटी के बाद. लेकिन that treaty was revised after 1991, and that particular clause of the treaty which ensured this kind of security for India was deleted from it. ओके, तो ये चीज थी 19. तीसरा फैक्टर क्या हुआ? तीसरा फैक्टर हुआ कि इमर्जेंस ऑफ यूएस हेजेमनी. सो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वर टू सुपर पावर्स, इन द वर्ल्ड, दैट वन यूएसए और दूसरा यूएसएसआर. ओके, बट आफ्टर 1991 क्या हुआ? आफ्टर 1991 हुआ कि इंडिया इमर्ज किया. कैसे इंडिया इमर्ज? आई एम सॉरी, यूएसए इमर्ज हुआ एज द लोन सुपर पावर. यूएसए इमर्ज हुआ लोन सुपर पावर एंड इमर्ज एज द वर्ल्ड हेजेमन. तो हेजेमनी, यूएसए की हेजेमनी हो गई 1991. अब इतना ही नहीं, चौथा फैक्टर देखिए. दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन इंडिया ब्रॉट अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स. ओके, ब्रॉट अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स. अब एलपीजी रिफॉर्म्स क्या कर रहे थे? इंडिया को एक कैपिटलिस्ट कंट्री बना रहे थे. और कैपिटलिस्ट कंट्री बना रहे थे तो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट वर्ड का लीडर कौन है? यूएसए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें किस कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहिए थे? यूएसए के साथ. तो वो भी एक फैक्टर बना कि हम यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन हुए. फिर अगला पॉइंट देखिए. अगला पॉइंट क्या है कि दिस वाज द टाइम 1990s से क्या हुआ कि इन द इंटरनेशनल एरिना जियो इकोनॉमिक्स started replacing geopolitics. ओके, तो मतलब जो रिलेशंस गवर्न हो रहे थे जिन फैक्टर्स के द्वारा, नाउ जियोपॉलिटिक्स उसमें डोमिनेट नहीं कर रही थी, जियो इकोनॉमिक्स डोमिनेट कर रही थी. एक चीज. अब क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी लगातार स्ट्रेंथन कर रही है ना, मजबूत बन रही है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी भी लगातार मजबूत बन रही है. और क्योंकि अब जियो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू लीड ओवर जियो पॉलिटिक्स, तो जो पहले के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे अब वो काउंट नहीं किए जाएंगे, या वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस बायलैटरल रिलेशनशिप में. इसलिए इंडिया और यूएसए का नेक्स्ट पॉइंट भी जो है वो यहाँ पास क्लोज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस वॉज द टाइम व्हेन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट became more important than government to government interaction in bilateral relationship. ठीक है, मतलब कि ये 1990 से लेके वही टाइम अब भी चल रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो था वो किसी बायलैटरल रिलेशनशिप में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन से बड़ा फैक्टर था. और बिकॉज ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्टेड इन यूएसए, a large section of Indian population migrated to USA and became the Indian diaspora there. So the presence of Indian diaspora in USA was significant, and Indian diaspora was also becoming influential in USA's soil. So it was having political clout. It was also having a substantial presence in business also, and that also contributed in bringing these two countries closer. तो ये सारे फैक्टर्स क्या थे जो इंडिया और यूएसए को बाद में क्लोज लाए. लेकिन इनिशियली क्या रहा है? इनिशियली ये चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक रही हैं, और इंडिया यूएसए का जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था. वहां पास हमारी आइडियोलॉजी, हमारी लीडरशिप की आइडियोलॉजी, या हमारी लीडरशिप जिन चीजों को सपोर्ट करती थी वो बहुत कुछ क्लियर वे में अमेरिका के अगेंस्ट ही जाता था. और यही कारण था कि जब मैंने पिछली स्लाइड्स में एग्जांपल दिया है कि वी वर
we were not having any problem when USSR intervened in case of Hungary, but we opposed USA's intervention in Vietnam. तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, अभी आगे और डिस्कशंस जो मैंने आर्टिकल्स रखे हुए हैं आपके डिस्कशन के लिए उनमें भी आप सीखेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि द ग्रुपिंग्स लाइक NSG that came into being or NPTs and all that, uh, that was something which was devised by USA to ensure that India does not acquire nuclear weapons. तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रहे थे. ओके, अब जयशंकर ने क्या किया है? जयशंकर has discussed relations with United States without any cant on recriminations, मतलब बिना किसी hypocrisy या बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है. Instead, it provides a nuanced account of the significance of the United States in India's present strategic calculus. ओके, तो हालांकि जो पास्ट रहा है इंडिया यूएसए का उतना ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, तब भी जयशंकर ने अपनी बुक में क्या किया है? यूएसए की इंपॉर्टेंस को बताया, मतलब इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को बताया, मतलब एक्सेप्ट किया है. यहाँ पास एम्फेसिस श्रीमद गांगुली का है कि जयशंकर हैज ओपनली confessed or admitted that USA is important if we take into account India's strategic framework. Okay, in this regard, it should be highlighted that Modi government does not carry the burden of India's previous hostility towards United States. Okay, और यही पास आप देखेंगे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब विजिट किया था और he addressed USA's parliament, he made a very famous statement which carried remarks like India and USA have come out of the hesitations of history. Okay, ठीक है. Indeed, it has sought to deal with Washington with a remarkable degree of pragmatism. और इस केस में इंडिया ने had sought to deal, वॉशिंगटन से जब डील, न्यू दिल्ली ने जब वॉशिंगटन से डील किया तो उसमें प्रैग्मेटिज्म बहुत है, मतलब रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म बहुत है, आइडियलिज्म नहीं है. यहाँ पास फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स में सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रैग्मेटिक है फॉरेन पॉलिसी. व्हाट इन द एंड इज द इंडिया वे? तो आखिर में इंडिया वे है क्या? ये बुक का नाम है जिसके बारे में सुमित गांगुली ने इसमें रिव्यू किया है. रीडिंग जयशंकर टेक could confuse a reader familiar with how India is depicted in newspapers around the world today. Jaishankar repeatedly extols India's commitment to pluralism and democracy and how its values have helped secure New Delhi's standing in the world. Okay, for example, India में अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जैसे हमारी लीडरशिप के द्वारा वर्ल्ड में प्रेजेंट की जाती है, तो उसमें कुछ वैल्यूज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. ओके, जैसे डेमोक्रेसी, फिर इट इज एंटी कॉलोनियल, एंटी रेसिस्ट. ओके, फिर क्या है? कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, okay. India also favors multilateralism. India stresses on dialogue rather than war as an instrument of foreign policy. तो ये सारी चीजें हैं, ये वैल्यूज हैं जो इंडिया की. ओके, लेकिन यही इनमें से बहुत सारी वैल्यूज क्या है? बहुत सारी कंट्रीज की हैं. सो फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ओके, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारा कुछ यूएसए की वैल्यू है. तो कहा जाता है कि इंडिया और यूएसए का बाद में क्लोज आने का कारण उनकी शेयर्ड वैल्यूज भी हैं, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम भी है.
लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए की जो डेमोक्रेसी को लेके वैल्यू है वो इंडिया के बराबर है। आपने देखा होगा कि यूएसए फॉरेन पॉलिसी हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव, sometimes even assertive in installing democracies around the globe. तो यूएसए has acted like a policeman of the world, okay, global policeman. और कई केसेस में ये जो स्टेप्स है यूएसए के द्वारा वो बहुत सेलेक्टिव रहे। मतलब imposition of democracy या democracy as a virtue has been used by USA as an instrument of foreign policy. तो आपने देखा होगा कि USA has been having very good relation with countries like Saudi Arabia also, which are not at all democracy. वो साफ साफ डिक्टेटरशिप्स हैं। और कई जगह दूसरी जगह यूएसए इंटरवीन करता है क्योंकि वो जो एक्सक्यूज जो रीजन साइड करता है दैट इट वांट्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी देयर। So if that is the real concern, then why at all it is having a very good relation with Saudi Arabia or countries like Saudi Arabia? तो उसके दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, ओके, या इशूज है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल यूएसए हैज नॉट बीन हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद ईरान। तो ईरान रिलेशंस विद ईरान हैज ऑलवेज बीन एंटागोनिस्टिक, ओके। यूएसए के रिलेशन ईरान से हमेशा खराब रहे और ईरान के रिलेशन सऊदी अरेबिया से हमेशा खराब रहते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देयर, शिया सुन्नी वाला इशू, ओके। तो ये एक इशू है। दूसरी बात, दिस वेरी कंपटीशन to to govern or to influence the politics of West Asia, that is also an issue there. तो ईरान को काउंटर करने के लिए वो ईरान के दूसरे दुश्मन सऊदी अरेबिया से कोलाइड करता है। फिर देर आर इशूज ऑफ ऑयल और क्रूड ऑयल, ये सारे इशूज भी यहाँ पास हैं। तो जियो पोलिटिकल कंसर्न्स, जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स वो बहुत सारे हैं जहां पास आप देखेंगे कि वो जो वैल्यू में एम्फेसिस है यूएसए का, वो ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी दूसरे के या बिना किसी एक्सेप्शन के है या अनबायस्ड वे में है, ऐसा नहीं है, ओके। इस चीज को समझिए यहाँ पास। आगे देखिए, जयशंकर repeatedly extols India's commitment to pluralism and democracy and how its values have helped secure New Delhi's standing in the world. There is little question that genesis and sustenance of India's democracy against the immediate odd is a story worth highlighting. Okay. Yet, whether Jaishankar wishes to acknowledge it or not, India's tradition of pluralism and its democratic institutions are today under serious duress. This is something which is the opinion of Sumit Ganguly. उनका personal opinion है कि India's tradition of pluralism and democratic institutions are today under severe duress. अब यहाँ पास ये साइट कर रहे होंगे कि इसको मतलब why it is being called, why this kind of remark is being made here, only because certain issues like Article 370 का अमेंडमेंट, ओके। फिर आप जानते हैं एनआरसी वाला इशू जो चल रहा था, फिर सिटीजनशिप का इशू दूसरे जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए का इशू, ये सारी चीजें यहाँ पास कुछ जो इशूज रेज किए गए हैं और जिनको इंडिया का फेलियर रहा है कि उन्हें प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर पाए बोथ टू द डोमेस्टिक मतलब कि आपकी लोकल पॉपुलेशन को और ग्लोबल कम्युनिटी को। यहाँ पास इंडियन लीडरशिप का ये फेलियर है कि एक बेनिफिशियल चीज को जो कुछ लोगों को बेनिफिट करेगी उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए कि डोमेस्टिक लेवल में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको लोग सही, उसकी मैसेज को लोग सही तरीके से समझ पाए। His government has displayed outright hostility towards any significant dissent code previously faced the Indian press and rendered India's judiciary into a mostly pliant institution. मतलब यहाँ पास सुमित गांगुली कह रहे हैं कि जयशंकर की गवर्नमेंट या ऐसी गवर्नमेंट जहां पास जयशंकर मिनिस्टर है, ओके, कैबिनेट प्लेस को होल्ड करते हैं, हैज डिस्प्लेड आउटराइट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एनी सिग्निफिकेंट डिसेंट। ये सुमित गांगुली का पर्सनल ओपिनियन है। आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर ओपिनियन ऑफ सुमित गांगुली, बट एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू आर analyzing any particular question or trying to write any analytical answer by being completely disinterested and having no inclination towards any particular ideology, तो आप इस तरह के इश्यूज को, इस तरह के ओपिनियंस को अपने आंसर्स में अपने किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए जरूर रख सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको अगले पैराग्राफ में काउंटर करें।
तो सुमित गांगुली का कहना है कि इस गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के डिसेंट के तरफ हॉस्टाइल रही है। ओके, कोड प्रीवियस हिस्ट्री इंडियन प्रेस और प्रीवियसली हिस्ट्री इंडियन प्रेस और हिस्ट्री इंडियन प्रेस को की है और रेंडर्ड इंडिया जुडिशरी इनटू मोस्टली प्लायंट इंस्टीट्यूशन, और इंडिया की जुडिशरी को भी इनइफेक्टिव बना दिया है। तो ये किसका ओपिनियन है? ये सुमित गांगुली का ओपिनियन है। ओके, सुमित गांगुली का ओपिनियन है। अब ये कितना सही है कि ये क्या मतलब, क्या दिस पर्टिकुलर ओपिनियन इज करेक्ट वेयर सुमित गांगुली इज सेइंग दैट द गवर्नमेंट हैज कोड प्रीवियसली फीस्ड इंडियन प्रेस, मतलब कि इंडियन प्रेस को भी डरा दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है, या जुडिशरी को प्लांट इंस्टीट्यूशन बना दिया है। ये चीज सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? कि डिसेंट तो लगातार हर सेक्शन से हुई है और ऐसा नहीं है कि वहां पास हॉस्टाइल रही है गवर्नमेंट। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू रिकॉल Anna Hazare's movement, and then after that Baba Ramdev's opposition, वो सब बहुत स्टर्न हैंड से डील किए गए थे। ओके, इंडियन प्रेस हैज ऑलवेज बीन, मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल्स आपको मिलेंगे जो लगातार इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। फिर जुडिशरी, इसी जुडिशरी के अंदर आपने देखा कि जब कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए बिल लाया गया और बिल फाइनली पास हुआ राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, तो उसको भी, उस पर्टिकुलर बिल्कुल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी जुडिशरी ने डायरेक्टली उसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और उसके बाद पार्लियामेंट ने कुछ नहीं कहा। बाद में एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हाँ, जहां जुडिशरी ने हाईएस्ट जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर जुडिशियल सिस्टम, स्पेशली विद कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां पास बनी। ओके, जिसके तहत काम भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुडिशरी हैज बिकम a planned institution under this government. This particular opinion is not actually true if you consider the facts here. But you can use these particular opinions in order to make any particular argument, even when you can counter it in the very next paragraph. Okay? तो ये है यहाँ पास इंटेंशन इस तरह की चीजों को डिस्कशन का पॉइंट बनाने का। आगे कह रहे हैं, unless those trends are contained, India's democratic experiment will be at grave risk. अगर इस तरह के ट्रेंड्स कंटेन नहीं किए जाते जो यहाँ पास सुमित गांगुली ने हाईलाइट किए, तो इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल बी अ ग्रेव रिस्क, मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सुमित गांगुली बोल रहे हैं। इट विल बी एट ऑड्स विद इंडिया वे इनविजन्ड बाय द कंट्रीज फाउंडर्स, और ये जो है उसके अपोजिशन में होगा जैसा कि हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने इन्विजन किया था। ओके, so this was all about this particular discussion on India's foreign policy vision. This discussion was based on the book written by Jaishankar. The name of the book is The India Way, and the book review was done by Sumit Ganguly. So Jaishankar and Sumit Ganguly both are very acknowledged names in India's foreign policy, जिनके opinions आप directly means के answers में लिख सकते हैं और ये आपको marks fetching answers create करने में मदद करेंगे। That was all for this very discussion. Thank you very much. अगर आप कोई कोर्स सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी में and you apply this very code, that is Amit PS, you are going to get 10% discount. Thank you.